Hello friends, my name is Nikhil Saini and I am in front of you with the next lecture that is on Article 13. With this we are going to continue our series on fundamental rights. So let us discuss about what is Article 13. So Article 13 is all about those laws which are against the fundamental rights. So what will happen with those laws? What kind of laws are going to be included in this? We are going to discuss in this video lecture. So come on, let us start with, as usual, our subject matter, that what is given in the constitution itself. So in the constitution, the first point is given is that all those laws that are pre-constitutional in nature will and are against the fundamental rights will be considered as void. There is another layer to this point which we are going to discuss in the next slide. Now the second point. It is going to be the responsibility of the state to make sure that they do not make any kind of laws that is against the fundamental rights. And if they do so, then it is going to be considered as null and void. Now the third point which is mentioned over here is that law. So आपके और मेरे लिए लॉ की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग हो सकती है. ये कोई भी साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, ये पॉलिटिकल टर्म्स हैं और इनके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज का खास ध्यान रखा कि कोई भी तरीके से वेगनेस ना रहे. तो यहां उन्होंने ये चीज साफ तौर पे क्लेरिफाई कर दी दैट लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज हैविंग इफेक्ट लाइक दैट ऑफ अ लॉ. सो उसके अंडर क्या क्या आ गया? ऑर्डिनेंसेस आ गए, रेगुलेशंस आ गए, नोटिफिकेशंस आ गए, और कोई भी जो हमारे दिनचर्या में हमारे कस्टम्स होते हैं वो उसके अंडर आ गए. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ओवर हियर इज that all the constitutional amendment acts won't be considered as law under Article 13. Now this point is having many layers to it which we are going to discuss in the further in this video. So come on, let us go to the next slide, and that is doctrine of eclipse. What does doctrine of eclipse means? So this is basically for the pre-constitutional laws. So all those laws which are against the fundamental rights and are pre-constitutional in the nature won't be null and void, won't be repealed. Yes, you heard it right, that they won't be repealed. Now why I am saying like that? Because all these will be suspended for that particular period of time, and if in near future there is an amendment in the fundamental rights or in the constitution which removes the inconsistency with that particular law, then that particular law will again come into the force. So that is why doctrine of eclipse is only applicable to the pre-constitutional laws and not for the laws that are post-constitutional in nature. So come on, let us go to the next slide and let us discuss that what are the developments in Article 30. So development की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिस केस के बारे में बात करेंगे वो है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. So the constitutional amendment under Article 368 won't be considered as law under Article 13. This is what was given in the Shankari Prasad case. तो this means कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, संविधान बनाने का अधिकार है, उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं आया. संविधान वो बना सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकते हैं. और यही चीज जो है सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1965, उसमें इस केस को जो है मेंटेन किया गया. ये जो जजमेंट था उसके अंदर कोई भी तरीके का चेंज नहीं लाया गया. तो चेंज कब आया? सो द चेंज केम विद द गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967. एंड व्हाट वाज दिस चेंज ऑल अबाउट? सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस. सो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ वर टू ब्रदर्स. इनके पास 500 एकड़ की जमीन थी और उस 500 एकड़ की जमीन को लैंड रिफॉर्म्स के अंडर, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हमारे आजादी के बाद आए, उनके अंडर इनको सिर्फ 30-30 एकड़ दोनों भाइयों को और कुछ जो है टेनेंट्स को दी गई, और उसके अलावा जितनी भी थी जो सरप्लस कंसीडर कर ली गई. एंड व्हाट डज दिस सरप्लस मींस? कि अब ये जाएगा सरकार के खजाने में. तो इसी चीज को जो है गोलकनाथ ब्रदर्स ने चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करते हुए ये चीज बताई कि इसके थ्रू हमारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रोफेशन जा रहा है, दैट इज फ्रीडम हमारी जा रही. फिर उसके बाद इन्होंने बताया दैट इट इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वेलिटी. तो इन ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया गया, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, विच क्रिएटेड अ वेरी 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 मच डिफरेंस इन द whole scenario of Article 30.
So the judgment was that the Article 368 is only giving you the procedure to amend the constitution and not the power to amend it. So this means that any amendment caused by Article 368 will be considered as law under Article 13. So under Article 13 clause 3, Constitutional Amendment Act will be considered as law. So न्यूटन का आपको नियम तो मालूम ही है कि एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उस समय पे गवर्नमेंट किसकी थी? इंदिरा गांधी. सो आपको मैं कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा. उस समय पे ऐसा हुआ था कि 1967 के दौरान जब ये जजमेंट आया तो उससे पहले से ही जुडिशरी और लेजिस्लेचर दैट इज इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज्यादा टसल चल रही थी. सो इन 1967 द इलेक्शन हैपेंड एंड द नेक्स्ट इलेक्शंस वर ड्यू इन 1972. बट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंदिरा गांधी ने जो है जल्दी इलेक्शन बुलाया. इन 1971 she came back with a thumping majority and decided to counter the judiciary. और उन्होंने काउंटर कैसे किया? उन्होंने काउंटर किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से. तो उन्होंने ये चीज बताई कि आर्टिकल 13 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि क्या है, पार्लियामेंट को रोक सके कोई भी चेंज करने में कॉन्स्टिट्यूशन. और दूसरा पॉइंट उन्होंने यहां पे ये आगे रखा कि अंडर आर्टिकल 368 we have both power as well as procedure to amend the constitution, and this is how the fourth point was included in article 13. So ये पूरा डेवलपमेंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस, और अपने आंसर राइटिंग में आप इसको बखूबी यूज कर पाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 13. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.